रिवाइज करवा देना सर इसकी थ्योरी वगैरह। पूरा कराऊंगा स्टार्ट टू एंड, थोड़ी सी ही स्टार्ट कराना है। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 30 है ना, लिमिट्स। चलिए स्टार्ट करिए, इंट्रोडक्शन। पढ़िए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए जय रीड करना शुरू करिए, इंट्रोडक्शन। चैप्टर स्टार्ट कर दिया बच्चों ने, लिमिट पढ़िए। Introduction. The limit of a variable is a fundamental concept in the study of differential calculus and integral calculus both. In the present chapter, we shall study the method of evaluating limits of functions, that is, of dependent variable of various kinds, making of x to a. Let x be a variable and we take the value of x as 1.9, 1.99, 1.999, 1.99999, and 1.9999. From these values, it is clear that x take these values from left to right. The numerical difference between x and 2 gets closer and closer to 0. Similarly, if x take values 2.01, 2.0001, 2.000001, 2.0001, even then the numerical difference between x and 2 gets closer to 0. In such case, we say that x approaches 2 and write x to 2. In general, when we say x approaches a, then we mean that the variable x takes those values which are either less than a or greater than a, and the numerical difference between x and a can be made as small as we please. In other words, the statement x is to a एक्स implies इज that टेंडिंग टू x ए, minus a. इसको बोलते हैं एक्स इज टेंडिंग टू ए, टेंडिंग टू ए, टेंड्स टू ए। एक्स ए की x तरफ मूव tends हो रहा to a है। x tends to a implies that x minus a mode can be made as small as we like. When we say x tends to a, then it is always understood that x will be not take the value a but rather would assume values which are very close to a. यस, एक्स टेंड्स टू ए का मतलब एक्स जो है ए के बहुत क्लोज में है, एक्स ए के बहुत पास में। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट पढ़ो। Limits of a function at a point. Let fx be a function of x. Let a and l be constants such that fx tends to l as x tends to a. That is, numerical difference between fx and l can be made as small as we please by taking x sufficiently close to a. In such a case, we say that the limit of function fx as x approaches a is l. We can write this as limiting x tends to a fx is equals to l, or limiting x tends to a fx is equals to l. यस, लिमिट का मतलब है कि x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तब fx l की तरफ अप्रोच कर रहा है। If x is approaching to a, this means fx is approaching to l। ये होता है लिमिट का मतलब, ठीक है। Yes, sir. ये हो गया। पढ़िए, इन अदर वर्ड्स। In other words, we say that the limit of function fx as x approaches a is l, that is limiting x tends to a, fx is equals to a, l. The numerical difference between fx and l can be made as small as we please by taking values of x sufficiently close to a. In case no such number l exists, then we say that limiting x tends to a, fx does not exist finitely. इन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन केस नो सच नंबर एल एग्जिस्ट, then we can say limit x tends to a fs does not exist finitely। अगर लिमिट पुट करने पर कोई फिक्स वैल्यू की तरफ ये fx नहीं जा रहा, उसका मतलब हम कहेंगे कि कोई फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सिंपल। पढ़ो क्वेश्चन, इवैल्यूएट। Evaluate the following limits. Limit x tends to 2, 3x. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए x टेंस टू 2 मतलब x को हमको किसकी तरफ ले जाना है, 2 की तरफ। तो 2 के पीछे से भी जा सकते हैं और 2 के आगे से भी जा सकते हैं।
तो एक में हमने 2 के पीछे से गए हैं, 1.9 पे देखा, 1.999 पे देखा, 1.999। अब तो हम जितना x की तरफ जा रहे हैं, x की वैल्यू जो किसकी तरफ शिफ्ट होती जा रही है, 6 की तरफ, है ना, x की वैल्यू 6 की तरफ। तो हम लिमिट क्या मानेंगे कि fx जो है 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और 2 से बड़ी वैल्यू लेके जा रहे हैं। देखो 2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 2 की तरफ 2.1 होगी, है ना। फिर और क्लास में आओ, 2.02, 2.03, तो ये भी किसकी तरफ मूव कर रहा है, 6 की तरफ। पढ़ो बेटा, लेट अस fx इक्वल टू 3x। Suppose that let fx is equals to 3x. Let us suppose that x approaches to, therefore x takes the value which are less than or greater than 2 and are very close to 2. The following table shows the value of fx as x tends to 2. 10 VC, ये टेबल देख लीजिए अच्छे से। देखिए x की वैल्यू आप कहां की तरफ जा रहे हो, x को आप 2 की तरफ लेके जा रहे हो। इफ x इज टेंडिंग टू 2, तो जो आपका fx है वो किसकी तरफ टेंड हो रहा है, 6 की तरफ। ओके, और पीछे से आ जाओ, तो पीछे से भी अगर आप x की वैल्यू 2 पर ले जा रहे हो, सॉरी आगे से x की वैल्यू 2 से लेके जा रहे हो, x की वैल्यू 2 लेते हुए, तो fx कहां पर शिफ्ट हो रहा है, 6 पर। और 10 Thus, 10 we see that fx, that is 3x, approaches 6 as x approaches 2. Limiting x tends to 2, 3x is equals to 6. अब इसका डायरेक्टली देखो कैसे, 6 की तरफ तो 2 पुट कर दोगे तो 3 2 जा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली पुट करके भी लिमिट को निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन पढ़िए, लेट। सर इतना लंबा करने की जरूरत है सर, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं ना सर। कुछ नहीं करना, वो सब दिखाने के लिए है, इतना कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल लेना, वो सब कुछ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ो, लेट एफ एक्स। Let fx is equals to 2x square minus 4x plus 7. Let us suppose that x approaches 1. Therefore, x takes value which are less than support or greater than 1 and are very close to 1. The following table shows the value of fx as पहली वाली x लेस देन tends वन के to लिए 1. बनाई गई है, दूसरी वाली ग्रेटर देन वन के लिए बनाई गई है। देखो 5.02, 5.08, 5.098, मतलब कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 5 की तरफ। और 5.02, 5.0018 कहाँ शिफ्ट हो रहा है, 5 की तरफ। तो इसकी लिमिट 5 आएगी, ठीक है ना, आया समझे ना, Yes, sir. क्लियर। यस, पढ़िए 10। Thus, we see that fx is, that is 2x square minus 4x plus 7 approaches 5 as x approaches 1, limiting x tends to 1. 2x square minus 4x plus 7 is equals to 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट। Let fx is equals to x cube. Let us suppose that x approaches 1. Therefore, x takes values which are less than or greater than 1 and are very close to 1. The following table shows the value of fx as x tends to 1. ये टेबल है लेस देन वन के लिए, ग्रेटर देन वन के लिए, हर बार आंसर वन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पढ़िए 10। Thus, we see that fx, that is x cube, approaches 1 as x approaches 1, limiting x tends to 1, x cube is equals to 1. Let अब fx is equals to x. अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको समझ में आएगा, जो कह रहे थे कि ऊपर इतना कैसे करेंगे सर। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोला गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और आपको बोला गया है कि 3 पर वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन की, है ना, 3 पर वैल्यू निकालनी है, एक्स इक्वल टू 3 पर। चलिए वैल्यू निकालते हैं एफ इक्वल टू 3 पर। एक्स इक्वल टू 3 पर लिमिटिंग वैल्यू भी निकालने की कोशिश, अगर डायरेक्ट डाल के करोगे तो ऊपर 3 का स्क्वायर माइनस 9 और नीचे 3 माइनस 3, कितना आ गया, ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो आ गया। जीरो जीरो क्या होता है बच्चों, अनडिटरमिनेट, क्या होता है, अनडिटरमिनेट, Undeterminate. अनडिटरमिनेट होता है। तो x इक्वल टू टू पर 3 पर देखो, x इक्वल टू 3 पर जो है ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, देखो किस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, वही x लेस देन 3 की वैल्यूज लेते हैं और x ग्रेटर देन 3 की वैल्यूज लेते हैं। 3 से कम वैल्यू 2.9, 2.998, 2.999। तो देखो ध्यान से ये ग्राफ किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये जा रहा है 6 की तरफ, और 2 से लेस वैल्यू
और 3 से बड़ी वैल्यू लेते हैं देखो, तो भी देखो ग्राफ किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, 6 की तरफ। मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो 6 आएगी, मगर डायरेक्टली अगर इससे देखा जाए तो ये अनडिटरमिनेट आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। बट ग्राफिकली उससे देखा जाए तो 6 आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में भाई आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए आप इसको ब्रेक कर लो, x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, और x माइनस थ्री को x माइनस थ्री से काट दो। अब वैल्यू पुट कर दो एफ एक्स की थ्री पर, एफ एक्स इक्वल टू कितना बन गया, x प्लस थ्री। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर देंगे x की थ्री पर, तो कितना आ जाएगा, थ्री प्लस थ्री। हाँ, पढ़ो, लेट अस सपोज, Let us suppose that x approaches 3, therefore x takes value which are less than or greater than 3 and are very close to 3. The following table shows the value of fx as x tends to 3. बिल्कुल सही, ये टेबल है। तो याद रखिएगा इस फंक्शन में अगर आप x इक्वल टू थ्री पर देखेंगे, ये फंक्शन x इक्वल टू थ्री पर डिफाइन नहीं है, बट कैंसिल करने के बाद ये जो निकलेगी ये लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो इसको कैंसिल करने के बाद हम लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकाल के आपको बताते हैं। पढ़िए, 10 VC। Thus we see that fx, that is x square minus 9 upon x minus 3, approaches 6 as x approaches 3. Limiting x tends to 3, x square minus 9 upon x minus 3 is equals to 6. यस, तो ये हो गई अपनी लिमिट की वैल्यू। चलिए बच्चों, अब आप एक काम करिए, अपनी एनसीईआरटी निकालिए और उसके शुरुआत के क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, टेस्ट एक्सरसाइज के स्टार्ट कीजिए। वापस देखिए स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट x टेंड्स टू 1 वेयर f(x) इक्वल टू, ये फंक्शन दिया गया है, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन x प्लस 4 है और x ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है। तो देखो भाई, ये अपने पास, और दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो पहला देखिए ये फंक्शन है, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x प्लस 4 है और x ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है। तो अगर आप x ग्रेटर देन 1 के लिए निकालें तो वो तो आपको 5 ही मिलेगा, मतलब ये 1 है, 1 से ग्रेटर के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको, 5 मिलेगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 में कोई भी वैल्यू रख दे, x की कोई वैल्यू रख दो उसका आंसर 5 दे रखा है, तो ये तो 5 मिलेगा। अब लेस की बात करते हैं, 5 से कम वैल्यू, तो 5 से कम वैल्यू क्या होती है, 0.9, और क्लोज आओगे तो 0.998, और क्लोज आओगे तो 0.9993, और क्लोज आओगे तो 0.9998। तो देखो आप अगर आप x की वैल्यू, सॉरी 1 से कम पुट कर रहे हो, तो 1 से कम में आपकी x की वैल्यू पुट करने पर fx कहां शिफ्ट हो रहा है, 5 की तरफ। तो आपका जो fx होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, 5 की तरफ। यहाँ पर चलो पढ़ो, लेट अस सपोज, Let us suppose that x approaches 1, therefore x takes values which are less than, greater than 1, and are very close to 1. The following table shows the value of fx as x tends to 1. 10 VC। Thus we see that fx approaches 5, x approaches 1, limiting x tends to 1, fx is equals to 5. लिमिट x टेंड्स टू 1, fx इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। We have हम्म, fx x minus 2, x हाँ, is x greater लेस than, देन 0 के लिए फंक्शन दिया गया है x माइनस टू, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन दिया है x इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन दिया है x प्लस 2। तो ये देखिए ये हाल है, x इक्वल टू 0 पर 0 है, तो x इक्वल टू 0 पर 0, x लेस देन 0 पे x माइनस 2, तो मतलब लेस देन 0 पे कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो x माइनस 2 आएगा, और x ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू रख रहे हैं तो फंक्शन होगा x प्लस 2। और लेट अस सपोज, let us suppose that x approaches 0, therefore x takes value which are less than or greater than 1 and are very close to 0. The following table shows the value fx as x tends to 0. अब अगली टेबल में देखते हैं कि fx की वैल्यू क्या होगी जब x 0 की तरफ टेंड होता है, तो fx की वैल्यू क्या, यस पढ़िए, 10 Thus we see that देखिए thus आप, we see that एक मिनट fx एक मिनट बेटा, fx इक्वल टू x माइनस टू के लिए अगर हम x की वैल्यू 0 से टेंड करते हैं और 0 के पीछे की तरफ से टेंड करते आ रहे हैं, देखो माइनस 0.1, 0.01, 0.002, 0.004,
तो आप देखो जो वैल्यू है इसकी एक्स एफ एक्स की जो वैल्यू है कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, -2.01 -2.001 -2.004, मतलब एक तरीके से ये -2 पर शिफ्ट हो रही है। और राइट हैंड के लिए देखिए फंक्शन क्या था, राइट हैंड के लिए फंक्शन था x+2। तो x+2 में अगर मैं x की वैल्यू 0 की तरफ आ रहा हूँ बाई पुटिंग 0.1 0.003 0.008, तो ये वैल्यू 2 की तरफ शिफ्ट हो रही है। हाँ तो देखिए इसमें जो आपके लेफ्ट से आ रहे हो, तो अगर आप लेफ्ट से आ रहे हो तो आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है -2, और अगर आप राइट से आ रहे हो तो आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है +2। इसका मतलब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पढ़ो 10 वी सी दैट। Thus, we see that fx does not approach to fx number as x approaches 0. Limiting x tends to 0, fx does not exist. हाँ तो बच्चों Exit. रूल बना लीजिए कि अगर एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्टली आप पुट करके उसमें आंसर चेक कर सकते हैं और लिमिट एग्जिस्ट करे तो कर रही है, नहीं कर रही है। चलिए पढ़िए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। Algebra of limits. In the above section, we learned the method of finding limit of a function at a certain point. In order to simplify this process of finding limits, we make use of certain results given below. The proof of these results are beyond the scope of this book. Let fx and gx be two functions that both limiting x tends to a fx and limiting x tends to a gs exist. If fx is equals to k, a constant function, then limiting x tends to a fx is equals to k. यस तो बच्चों ये अपना लिमिट का फॉर्मूला है अपने पास। ये कह रहा है कि दो आपके पास फंक्शन है और किसी ए पॉइंट पर लिमिट x टेंड्स टू ए, मतलब x a पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट x टेंड्स टू a gx भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू a कांस्टेंट आ रहा है, अगर fx इक्वल टू k कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हर जगह कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट फंक्शन पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां पर ये बात कही गई है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। सेकंड पढ़िए, लिमिट एक्स टेंड्स टू Second, ए limit x tends to a के एफ एक्स। k kfx is equals to k limiting x tends to a fx. हाँ मतलब Third, कांस्टेंट जो होगा फंक्शन के साथ में है, तो फंक्शन लिमिट को झेलेगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आगे पढ़ो। limiting x tends to a fx plus gx, limiting x tends to a fx plus limiting x tends to a gx, limiting x tends to a fx minus gx, limiting x tends to a fx minus limiting x tends to a gx, limiting x tends to a fx dot gx is equals to limiting x tends to a fx dot limiting x tends to a gx. हाँ मतलब Sixth, सम में लिमिट ऐड हो गई, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो गई, डिफरेंस में घट गई, डिवीजन में डिवाइड हो गई, दोनों लिमिट देख लो। प्रोवाइडेड नीचे वाला कभी जीरो के इक्वल ना हो। yes sir. और लास्ट है कि अगर पावर n लगी हुई है तो n पावर बाहर बैठेगी और अंदर वाला इंटीग्रेट सॉरी अंदर वाले में लिमिट लग जाएगी। एड टू द मेमोरी पढ़ो बेटा, एड टू द मेमोरी द अब रिजल्ट। Add to the memory. The above result can be easily remembered as follows. The limit of a constant function is the same constant. The limit of a scalar product is equal to the scalar product of the limit. The limit of a sum is equal to the sum of the limits. The limits of a difference is equal to the difference of the limits. The limits of a product is equal to the product of the limits. The limit of a quotient is equal to the quotient of the limit provided the limit of the denominator is non-zero. The limit of the nth root is equal to the nth root of the limit provided that the nth root of the limit is a real number. चलिए तो ये हो गई अपने पास लिमिट के पूरे कंसेप्ट। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 6x+4, अलग अलग लिमिट तीनों पे लगा दीजिए, जस्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत इसमें पहले वाले में, जस्ट लिमिट पुट करनी है, एक्स की जगह पे 1 तो 1 आ गया, फिर x+6 यानी 6
x प्लस 6x है, सॉरी बच्चों 6x है। सर 6x को x प्लस 6 क्यों लिख दिया सर? अरे वो मिस्टेक हो गया है, ये चीज मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर लो। देखो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 गया तो 6 1 जा 6 आ गया, और 4 की जगह 4 आ जाएगा, आंसर 11। अब क्लियर है, ये लाइन गलत थी। यस सर, आ गया सर समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां जहां पे अपना x माइनस वन है, x की जगह माइनस वन पुट करना है, तो x की जगह माइनस वन पुट करके बताइए आंसर कितना आएगा। -2। टोटल आंसर -2 है आपका। अच्छा, -1/2। -1/2, चलिए चेक करते हैं, है ना। पुट करिए तो -1 की पावर +10 हो जाएगा, पुट करोगे -1 की पावर +1 +10 हो जाएगा, प्लस -1 और +1 तो है ही, और -2, इससे ये कैंसिल, आंसर -1/2 आएगा। यस, सही। तो हो गया। यस, तो इसका आंसर है -1/2। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बन जाएगा। हेलो, यस बन सर, जाएगा। 1 मिनट सर। 32। यस सर, बन गया सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, रिमार्क्स फ्रॉम। From our example, the reader should not gather the impression that limiting x tends to a fx is equals to f that is limiting x tends to fx is the value of fx when x is equals to a in general. This equality may or may not be true. The reader is advised to make himself well acquainted with the standard result 1 to 7 mentioned above. In our further discussion, we shall be making frequent use of these results without mentioning them. यस, चलिए करिए अगला क्वेश्चन। वैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 की वैल्यू फाइंड करो अगले में। So 3, 3, और इसका ग्राफ बनाओगे, देखो तो ये 1 पर क्या वैल्यू दे रहा ऐसे है बेटा, जाएगा 1 पर दे रहा है 0, 1 पर दे रहा है क्या, 0। 0। तो 1 के आगे 3 से जाएगा ग्राफ, और 1 के पीछे 3 से जाएगा। 1 पर 0 मिल चुका है, इसलिए 1 पर बबल लगा दो, और 1 के आगे 3 और 1 के पीछे 3 पर स्ट्रेट लाइन जाने सर दो। स्ट्रेट लाइन से उन्होंने बनाया कैसे सर? 3 और वैल्यू 1, हाँ आ वैल्यू गया सर। वैल्यू पुट करके, सर आ गया। बस ये बताना है कि 1 पर जो है, 1 पर वैल्यू 1 आई है, और लिमिटिंग वैल्यू 1 पर 3 है, तो 1 के आजू और 1 के बाजू जो वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी, ये वाली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लेट अल्फा एनसीईआरटी क्वेश्चन एट A1 A2। क्वेश्चन पढ़ो जाए। Yes, sir. Let a1, a2 to an be fixed real number and define a function fx is equals to x minus a1, x minus a2 to x minus an. What is the limiting x tends to a1 fx? बताइए। So 0। 0, बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे पुट करोगे तो x की जगह a माइनस ए वन अलग अलग लिमिट कर दोगे, तो a1 माइनस ए वन पुट करोगे
तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स क्या होगा। तो जहां जहां x है वहां वहां a रख दो, तो आंसर a माइनस ए वन, a माइनस ए टू, अप टू a माइनस ए, ये भी ठीक है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए। Let fx is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus 2 plus an x raised to power n be a polynomial function. Prove that x tends to a fx is equals to f अल्फा, a alpha. एफ एक्स की जगह अल्फा पुट करोगे तो बहुत ही सिंपल है, एक्स की जगह अल्फा डाल दो और वो क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा। ये उल्टा क्यों हो गया? चलिए ये तो वो हो गया, तो सेम है। हाँ, वैल्यू देखिए पुट कर दी अपन ने, पढ़ो बेटा वैल्यू। सोल्यूशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स, वैल्यू पुट करी a0 प्लस a1 एक्स को सॉल्व करने पर x की जगह अल्फा, a1 अल्फा a2 अल्फा इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, f अल्फा बन जाएगा, क्योंकि fx में अल्फा की जगह x आ रहा था, तो अब क्या बन जाएगा, f अल्फा। ठीक है, Yes sir. कोई दिक्कत, No sir. एनी प्रॉब्लम बच्चों? No sir. ठीक है, ये होमवर्क है आपको, एक इसके पहले भी मैंने होमवर्क दे दी शीट, और दूसरी शीट ये भी पूरी आपको करके लेके आनी है। ओके, एक एक क्वेश्चन ग्रुप में डले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट Evaluation of limit x tends to a एफ एक्स जी एक्स। fx upon gx when limiting x tends to a fx is equals to 0, limiting x tends to a gx is equals to 0. हाँ, ये बहुत To know इंपॉर्टेंट that है, जब न्यूमरेटर भी जीरो बन जाए और डिनोमिनेटर भी जीरो बन जाए तब लिमिट निकालने के मेथड क्या होंगे। वी नो दैट, we know that limiting x tends to a fx upon gx is equals to limiting x tends to a fx limiting x tends to a gx, provided limiting x tends to a gx is not is equals to 0. In case limiting x tends to a fx is equals to 0 and limiting x tends to a gx is equals to 0, the above formula is not applicable. In following three methods are used to evaluate limiting x tends to a fx upon gx. First, method of factors. फैक्टर्स, फैक्टर करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। इन दिस मेथड, In this method, fx and gx are the factorized and the quotient fx upon gx is simplified by cancelling the common factor. If the limits of the resulting denominator as x tends to a is non-zero, then the quotient rule of limit is applied to get the required limit. Working steps to find limiting x tends to a fx upon gx. Step first, factorize fx and gx. Step second, the common factors in fx upon gx are cancelled. Be sure that the limits of the resulting denominator as x tends to is non-zero. Step third, apply quotient rule of limits at this stage. चलिए देखिए सॉल्व करते हैं बच्चों। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो सबसे पहले आपने लिमिट एक्स की जगह टू पुट किया, तो जैसे टू पुट कर गए तो जीरो अपॉन जीरो में आ गया, तो जीरो अपॉन जीरो में आते ही आप क्या करोगे बच्चों, फैक्टराइज करोगे, तो न्यूमरेटर फैक्टराइज किया ये बन गया और डिनोमिनेटर फैक्टराइज बन गया ये बन गया, तो दोनों को पुट कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो x माइनस टू दोनों से कॉमन है, कैंसिल कर दो, केवल क्या बच गया x माइनस वन और x प्लस वन। ठीक है ना, यस, तो अब वैल्यू डाल दीजिए, x की जगह 2 है, लिमिट x टू 2 माइनस वन अपॉन 2 प्लस वन,
आंसर आ गया 1/3। नोट करो 1/3। नेक्स्ट अगला जैसे है x टेंस टू -3, तो जैसे मैंने -3 रखा तो ये 0.0 फॉर्म में आ गया, तो ऊपर भी फैक्टराइज करूंगा और नीचे भी फैक्टराइज कर दूंगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नोट कर लो। ओके चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो x टेंस टू 3 और x टेंस टू -3 जो है हम दोनों पुट कर देते हैं। आप देखिए कॉमन ले लीजिए, ऊपर से भी कॉमन कुछ लीजिए। क्या ले लीजिए ऊपर से कॉमन? x+3 कॉमन ले लीजिए। ऊपर से x+3 कॉमन ले लीजिए, है ना। x+3 तो ये बचेगा और नीचे से भी x+3 तो ये बचेगा, तो दोनों से ये पुट करके कैंसिल कर दीजिए, तो इतना आ गया, वैल्यू पुट कर दो। चलो सॉल्व करो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? x+3 ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से कॉमन ले लो। नीचे से कॉमन दिख रहा है, ऊपर से कॉमन लेने के लिए डिवाइड कर दो। ओके चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग लिमिट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? 0.0 फॉर्म पड़ रहा था, ब्रेक कर दिया। बताइए कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो। नीचे x-3 2x+1 है, तो x-3 से x-3 कैंसिल कर दो और यस सर। लिमिट पुट कर दीजिए। आंसर आ गया 108/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 4 पर लिमिट निकालनी है, होल पावर 15, तो x² माइनस x+12 को तोड़ लिया, ये आ गया, तो इसको ब्रेक करने पर x-4 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक, डिनोमिनेटर का x-4 है, कितनी पावर है इसके पास? 14 पावर है, और ऊपर x-4 के पास 15 पावर है, तो आंसर बचेगा इसका 0। 0.0 नहीं 0, क्योंकि x-4 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क लिखिए। लिमिट x टेंस टू √2 x² + 3 √2x - 8, और ये वाला सेकंड वाला। चलिए इसको कल करके लेके आइएगा, ओके। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको कल करके लेके आइए। थैंक यू। यस सर।